খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে সঁচাই ভালনে তেতিয়ালে মোৰ লগত কব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ শ্ৰী বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অনুপ কুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ অনুৰোধত বিশেষভাৱে উপস্থিত ভাৰতৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি শ্ৰী ৰাধাকিষণ দামানী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ বিষয়াবৰ্গ এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষকে আদি কৰি অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল তিনিচুকীয়া আৰু গোলাঘাটত উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ গুৱাহাটীত উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি অসমৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু শুভ উদ্বোধন আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ দিনটোত আমি অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ বাবে 2092 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ বাবে ইয়াত উপস্থিত হৈছো 675 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খন্তেক সময় আগতে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিছে আজি তেখেতৰ কৰ কমলেৰে 270 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি নিৰ্মাণ কৰা গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়াৰ কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰো শুভ উদ্বোধন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও 814 কোটি টকা ব্যয়েৰে ডিফু যোৰহাট আৰু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 3খনকৈ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটাল গুৱাহাটীত 218 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্য ভৱন আৰু 115 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া অভয়পুৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰো আজি শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হ'ব মই আটাইবোৰ স্থানতে উপস্থিত সমূহ ৰাইজক মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আজি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধনৰ লগে লগে গুৱাহাটীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 3খনলৈ বৃদ্ধি পালে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ESIC মেডিকেল কলেজ বেলতলা আৰু এই তিনিওখনৰ লগতে চাংচাৰিত এইমছ গুৱাহাটীও কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 10 মিনিটৰ ৰাস্তালৈকে ৰূপান্তৰ হ'ল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই পোনপ্ৰথমে আৰু এটা দিশলৈ মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব খুজিছো यूक्रेन में जब पहला बार युद्ध हुए
और तमाम मेडिकल स्टूडेंट भारत में लौट के आए और असम का भी कोई सारे लोग लौट के आए और पूरा सरकार का ऊपर एक प्रेशर बना कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज का क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रहा है कि हमारा लोग यूक्रेन जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मुहिम उठाया कि हम 1 लाख MBBS सीट देश में निर्माण करेगा। उसी समय आप लोग सबको मालूम होगा मुंबई में डी मार्ट एक बहुत बड़ा रिटेल चेन है। राधा कृष्ण दमानी जी का बारे में मुझे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने फोन किया। एक दिन सुबह मुझको फोन किए और बोले कि मेरा एक दोस्त है, नाम राधा कृष्ण दमानी जी है, मेडिकल कॉलेज असम में अगर आप कुछ बनाने चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक बिल्डिंग होगा उसमें जितना भी रुपया पड़ेगा दमानी जी उसको देना चाहते हैं। तो मेरा मन में प्रश्न आया कि असम में तो उनका कुछ नहीं है, वो क्यों पैसा देगा, मुझे क्यों क्या करना होगा। तो पीयूष जी ने मुझे बताया कि आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लगे तो उनका माता जी का नाम में मेडिकल कॉलेज में कुछ मिट्टी आप रख दीजिए, इतना ही होगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो वो भी मत कीजिए। तो मुझे सुनने का बाद मेरा थोड़ा विश्वास भी रहा, अविश्वास भी रहा। और मैं एक हमारे कमिश्नर जी को मैंने पासन कर दिया कि ऐसा फोन आया, मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन आप एक बार बात कर लीजिए। तो सिद्धार्थ जी ने दमानी जी से बात किया और दमानी जी ने बोले कि एकेडमिक बिल्डिंग के लिए आपको 150 करोड़ रुपया चाहिए, 200 करोड़ रुपया चाहिए और हमसे आप ले लीजिए। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगा। मैंने बोला नहीं नहीं, दमानी जी को गुवाहाटी बुलाइए। तो गुवाहाटी आए और 2022 में हमने एक MOU किया कि प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज जो सरकार बना रहा है उसका एकेडमिक बिल्डिंग में जो भी खर्चा आएंगे वो दमानी जी हमें देने का काम करेगा। बीच में मुझको लगा कि कुछ असम में शायद काम भी करना चाहेगा, लेकिन 22 से मैं आज 26 सन हुए। बीच में मैं मुंबई मिल के दमानी जी को बोला भी था कि आप असम में भी कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि ये मेरा चैरिटी है, प्रधानमंत्री जी का हिस्सा था कि देश में 1 लाख मेडिकल सीट बने, इसलिए मैंने ये असम को दे रहा हूं। इसके लिए और मुझे कुछ आपको देना भी नहीं है और मुझे कुछ लेना भी नहीं है। तो एक बार दमानी जी के लिए एक पूरा आप लोग सब ताली लगाइए। इसलिए ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन आज दमानी जी हमारा बीच में है। मैं दमानी जी को पूरा असम वासियों का ओर से स्वागत करता हूं। हमारी याद जिखन मेडिकल कॉलेज आमी बनाइছো 505 बेड होबो, 46 यात ICU থাকিবো, and already this medical college has recognized by the National Medical Council আৰু আমাৰ 100 জন ষ্টুডেন্ট ইয়াত বহিও আছে। মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো। ষ্টুডেন্ট বিলাক আছে নে নাই ইয়াতে? আছে, বঢ়িয়া। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়াত 2খন कैंसर हॉस्पिटलर शुभ उद्बोधन करिब। आप लोग सबका याद होगा कोविड का पहले
माननीय गृह मंत्री जी का उपस्थिति में असम में रतन टाटा जी आए थे और गृह मंत्री जी ने रतन टाटा जी को बोले थे कि उत्तर पूर्व का हर प्रदेश में आप एक कैंसर हॉस्पिटल बनाइए। फिर असम ने थोड़ा सपना बड़ा देखा। रतन टाटा जी और गृह मंत्री जी का सामने हम लोगों ने एक एमओयू किया कि असम सरकार 50% हिस्सा होगा, टाटा ट्रस्ट 50% कंट्रीब्यूशन करेगा, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 हम लोग पूरा प्रदेश में 17 कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। केमो से लेके रेडियोथेरापी से सर्जरी तक। उसी सिलसिले में आज हमारे 12 कैंसर हॉस्पिटल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था डिब्रूगढ़ से। आज और 2 कैंसर हॉस्पिटल रेडी हो गया है, तिनसुकिया और गोलाघाट में। गृह मंत्री जी वर्चुअली इसका भी आज उद्बोधन करेगा और लगभग और 3 हो जाने से हमारा 17 कैंसर हॉस्पिटल का जो एक सपना था वो साकार हो जाएगा। आज इतना कैंसर हॉस्पिटल मेरा लगता है कि सरकारी सेक्टर में ऐसा और कई स्टेट में इतना कैंसर हॉस्पिटल का जाल नहीं है जो आज असम को मिला है। थोड़ा दिन पहले मैं दावोस गया था। हमारे जो कैंसर का मॉडल है लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, उसी मॉडल महाराष्ट्र में करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और एक अनुष्ठान का बीच में एमओयू हुए। हमारा पेविलियन और महाराष्ट्र पेविलियन एक ही साथ में थे, तो मैं सज्जन को हमारा पेविलियन में बुलाया और मैंने पूछा महाराष्ट्र में क्या साइन किए और थोड़ा मुझे दिखाइए, किसलिए मैं भी काम कर रहा हूं, थोड़ा मैं भी इंप्रूव करूंगा। उन्होंने हमें एमओयू दिखाया और उनका एमओयू और हमारा एमओयू का बीच में दाढ़ी और कमा का भी कोई डिफरेंस नहीं था। पूरा असम का मॉडल ही आज महाराष्ट्र में भी रेप्लिकेट करने के लिए काम शुरू हुए हैं। लेकिन हम लोग एक कदम आगे निकल गया हूं। हम असम में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रोटॉन बीम थेरापी मशीन भी लेके आ रहा हूं। भारत में ये सरकारी खंड में पहला इतना बड़ा रेडियोथेरापी का इक्विपमेंट आ रहा है। हमारा टेंडर प्रोसेस चल रहा है। We are about to close that tender process। जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग प्रोटॉन बीम थेरापी मशीन लेके आ रहा हूं at the cost of almost 400 to 500 crores। Assam will become a destination for cancer treatment। यही हमारा लक्ष्य है और इस काम का शुरुआत गृह मंत्री जी का हाथ से 2019 में शुरू हुए थे और आज गृह मंत्री जी का करो कमलों से हमारा और 2 कैंसर हॉस्पिटल आज उद्घाटन होगा। मैं गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारा असम में 15 मेडिकल कॉलेज है, 6,000 करोड़ रुपया लागत से और 10 हॉस्पिटल का निर्माण का काम चल रहा है और लगभग ये सारा कंस्ट्रक्शन हो जाने से असम में एमबीबीएस सीट का संख्या 5,000 तक पहुंच जाएगा। इस बार अभी तक हमारा जो एमबीबीएस सीट है ये सीट मिला के अभी हमारा 2,000 एमबीबीएस सीट हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आज हमारा ये सभा से ही अभयापुरी में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल निर्माण का काम शुरुआत होगा। डिफो मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज और बरपेटा मेडिकल कॉलेज में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने का काम आज ही शुरू भी हो जाएगा। मैं
आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे लक्ष्य से कि सारे जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज हो और मेरा लगता है कि बाय 2030 हम लोग ये लक्ष्य पूरा कर लूंगा। अगली साल हमारा बंगाईगांव में भी नया मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। आमार अहोमर लड़ा छुआली मेडिकल पढ़िबर कारणे जाते देशर बाहिरत ना जाय तार कारणे আজি আমি प्रचेष्टा करिछु। আজি যদি আমি এই मेडिकल कॉलेज खन नकरिलु हेतेन এই 100 गराकी लड़ा छुआलीर 80 जने केतियाও जीवनत मेडिकल कॉलेज पढ़िब नोवारिले हेतेन। कारण बाहिरत मेडिकल पढ़िब गले जिमान टका দিব লাগে मध्यबित्त समाजखने इमान टका केतियाও দিব নোৱাৰে। সেই কাৰণে আজি অসমত এটাৰ পিছত এটা আমি মেডিকেল কলেজ বঢ়াইছো, স্বাস্থ্যৰ সুবিধা বঢ়ুৱাইছো আৰু আজি আমি নিজে দেখা পাইছো যে আমাৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট, ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট নাটকীয়ভাৱে আজি কম হৈছে। মানুহে ফ্ৰী ডায়ালিसिस পাইছে। লৰা ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰিটমেন্ট কৰিছো আৰু আমাৰ ৰাজ্যত আমি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এখন মডেল ষ্টেটলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো। নাৰ্ছিং এডুকেশ্যন বাঢ়িছে, নাৰ্ছৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, আমাৰ ছোৱালীবিলাকে পঢ়িব সুবিধা পাইছে আৰু মেডিকেলৰ লগত জড়িত পেৰামেডিকেল কোৰ্সো আজি আমি ডেভেলপ কৰি লৈ গৈ আছো। মই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজক অভিনন্দন জনাইছো আৰু মই আশা কৰো যে এই মেডিকেল কলেজখন অসমৰ ভিতৰতে এখন সুন্দৰ মেডিকেল কলেজ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব। আজিৰ পৰা আমি ইয়াতে আইপিডি অপিডি সকলো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ বিল্ডিঙৰ ৰিনোভেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ ইয়াৰ পেচেণ্টৰ লোডো বহুত বাঢ়িব। চিকিৎসকসকলে, অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। তাকে মই আশা কৰিছো। পুনৰ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। সকলোৱে মোৰ লগত আকৌ এবাৰ ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आय असम।